Hello students, so today let us continue with the chapter Diversity Grade 2. In the last class we learned about the story of Samir 1 and Samir 2. Samir 1 was a Hindu and who was familiar with English. वो रोज़ अपनी साइकिल पे स्कूल जाता था. समीर 2 रोड फोर्ट क्रॉस पे न्यूज़पेपर सेल करता था. ही डिडंट इवन नो द मीनिंग ऑफ द टर्म सब्जेक्ट. फिर समीर 2 बताता है कि उसके पेरेंट्स जहाँ पे रहते हैं दैट इज़ इन मेरठ, वहाँ पे कम्युनल राइट्स होती है, उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे है. फिर नेक्स्ट डे क्रॉसिंग पे समीर 2 कभी दिखाई नहीं एंड देयर वाज नो वन टू सेल न्यूज़पेपर्स. तो उन लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बताया है कि कैसे समीर 1 और समीर 2 अलग थे. Samir 1 is more familiar with English. Samir 2 speaks Hindi. Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made efforts to do so because this was what was important to them. We all know Samir more familiar था English से. Samir 2 was familiar to Hindi. दोनों अपने घर पे अलग लैंग्वेज बोलते थे, पर स्टिल जब उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना था तो वो कॉमन लैंग्वेज में बोलते थे बिकॉज उनके लिए उस टाइम पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी. समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट religious and cultural backgrounds. While Samir 1 is Hindu, Samir 2 is a Muslim. Different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. Samir 1, Samir 1 was Hindu, Samir 2 was Muslim. Samir 1 हिंदू था, अलग कल्चर से बिलोंग करता था, अलग रिलीजन से बिलोंग करता था कंपेयर टू समीर 2, और उनके बैकग्राउंड्स भी अलग थे. तो ये एक मेन एस्पेक्ट है, मेन फीचर है डाइवर्सिटी का कि सब अलग है फिर भी साथ रहते हैं. Make a list of the festivals that might have been celebrated by the two boys. So this is your homework. समीर 1 क्या क्या करता है, यू हैव टू राइट दैट. समीर 2 के कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, आपको वो भी लिखना है. In addition to the diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir 1 and Samir 2 are different from each other. For example, while Samir 1 goes to school, Samir 2 sells newspaper. इसके अलावा भी डिफरेंस है. समीर 1 स्कूल जाता था, समीर 2 न्यूज़पेपर सेल करता था. सो आपको क्या लगता है कि समीर 2 ने स्कूल क्यों नहीं अटेंड की? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू? अगर उसको करनी थी तो उसके लिए आसान था स्कूल अटेंड करना. In your opinion, is it fair situation that some children get to go to school and others don't? आपका क्या ओपिनियन है? कुछ बच्चों को स्कूल जाने को मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है. आप क्या सोचते हो इसके बारे में? यू हैव टू डिस्कस दिस विथ योर फैमिली. Samir 2 did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. So समीर 2 के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल जाने के लिए. इवन हम भी हमारे आसपास नोटिस करें तो देयर आर मैनी पीपल जिनके पास खाने या पहनने के लिए भी नहीं होता है सफिशिएंट, एंड काफ़ी बार उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती है. एंड द डिफरेंस इज़ नॉट द सेम. और इन लोगों का जो डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने पहले देखा, उससे काफ़ी अलग होता है. हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी के बारे में बात करें, नॉट ओनली इन डिफरेंस. इनइक्वालिटी है कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. Inequality क्या होता है? Underline this and make sure you remember. Inequality तब आती है जब एक पर्सन के पास रिसोर्सेज भी नहीं होते और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होते जो दूसरे लोगों के पास होते हैं. सो दिस इज डिफाइंड एज इनइक्वालिटी.
The caste system is another example of inequality. According to this system, the society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. This system was considered irreversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following chapters. कास्ट सिस्टम एक दूसरी चीज़ है जिसके बेसिस पे इनइक्वालिटी होती है. अगर हम बात करें सोसाइटी को इस बेसिस पे डिवाइड किया गया था पहले के टाइम पे, जो आप वर्क करते थे. फॉर एग्जांपल अगर आप पॉटर हो तो आपके बच्चे भी पॉटर ही बन सकते हैं, एंड दे हैड नो अदर चॉइस ऑफ देयर ओन. और ये सिस्टम उस टाइम पे इरिवर्सिबल मानी जाती थी कि ये जो है वो वही फॉलो होगा, इसको हम कभी रिवर्स नहीं करेंगे, बिकॉज आपको कभी वो प्रोफेशन चेंज करने का चांस मिला ही नहीं था. एंड इसके वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती गई, और इस इनइक्वालिटी के बारे में हम पूरे बुक में अलग अलग फॉर्म में पढ़ते रहेंगे. What does diversity add to your lives? डाइवर्सिटी के वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या आता है. Now diversity is difference. Just like Samir 1 and Samir 2 became friends, you might have friends who are different from you. They belong to probably different caste or different religion. आपके भी कोई friends होंगे. You have probably eaten different kinds of foods in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learn some of their languages as well. फूड होता है होम्स में, आप किसी के घर जाते हो तो दूसरे टाइप के फूड खाते हो, उनके साथ उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, एंड काफ़ी बार उन्होंने जो पहना होता है वो भी पहनने की ट्राई करते हो, एंड लर्न द लैंग्वेज एज वेल. तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी का पार्ट है. सो राइट, यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ फूड जो आपने खाया हुआ दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, आपने क्या क्या खाया हो, यू हैव टू मेक दैट लिस्ट. Make a list of the languages beside your mother tongue that you can speak at least 1 or 2 words of. आपको कोई भी लैंग्वेज के एक्सेप्ट योर मदर टंग 1 या 2 वर्ड आता है तो यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ दैट लैंग्वेज एज वेल. Now, moving further, you probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people, and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books, real life, and even from their imagination. सबको पढ़ना पसंद होगा. आप बचपन में होते तो स्टोरीज सुनना भी बहुत पसंद था, बीट एडवेंचर्स और रिलेटेड टू डिफरेंट एनिमल्स, पीपल्स, और कभी कभी हम लोग घोस्ट की स्टोरीज भी सुनते थे. और परहैप्स यही एक टाइम था कि हम लोग स्टोरीज काफ़ी बार बनाना भी एंजॉय करते थे. जो ये यंग पीपल है, दोज हु राइट द स्टोरीज, वो क्या करते हैं, वो काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हैं, रियल लाइफ में रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेते हैं या उनकी इमेजिनेशन से इंस्पिरेशन लेते हैं, एंड देन दे स्टार्ट राइटिंग देयर ओन स्टोरीज. सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट्स close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं, एनिमल्स के बीच में जो फ्रेंडशिप एंड फाइट होती रहती है उनके बारे में लिखते हैं. या तो कोई लोग किंग्स एंड क्वींस के रियल अकाउंट पढ़ते हैं, मतलब उनकी जो डेटाज अवेलेबल है वो पढ़ते हैं और उसमें से स्टोरी बनाते हैं अबाउट लव एंड ऑनर. फिर कोई लोग तो अपने चाइल्डहुड में से इंस्पिरेशन लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेमोरी स्पेंड की हुई हो या स्कूल में जो स्पेंड किया हुआ, और उसके बाद वो उसमें से स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स लिखते हैं. Imagine
If all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example deer and cat, and to entertain themselves played snakes and ladder, what kind of stories do you think they would write? आप इमेजिन करो कि आपने अभी तक जितनी भी स्टोरीज पढ़ी है या जितनी भी स्टोरीज के बारे में सुना हुआ है, अगर उन सबको सिर्फ दो ही सबको एक साथ रख दे तो उनकी स्टोरी कैसी होगी? सिर्फ वहाँ के लोग अगर सिर्फ दो कलर के कपड़े पहने, फॉर एग्जांपल वाइट एंड रेड, या तो सिर्फ एक ही फूड खाए दैट इज़ पटेटो, या तो दो एनिमल्स का ही ध्यान रखे दैट इज़ डियर एंड कैट, या खुद को एंटरटेन करने के लिए सिर्फ स्नेक्स एंड लेडर खेले, तो उनकी स्टोरी कैसी होगी? सबकी स्टोरी सिमिलर होगी, सब वैसे ही थोड़ी एकदम सेम लगेगी, राइट? यस, सो दिस शोज डाइवर्सिटी. सब अलग अलग जगह पे रहते हैं तो उनके थॉट्स में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़. हम यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम लोग अलग अलग रिलीजन्स को भी प्रैक्टिस करते हैं. बट एक्चुअली अगर हम देखें, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज. हम लोग सब चीज़ें सेम करते हैं, वी खाते भी है, पर खाने का क्यूजन अलग अलग रहता है. वी प्रैक्टिस आवर रिलीजन्स बट द वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इज डिफरेंट. वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स बट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इट इज डिफरेंट. तो हम करते सब सेम चीज़ें बट उसका तरीका सबका अलग है. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो 200 years या उससे पहले की बात करें, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार नहीं था, तब पीपल एक जगह से दूसरी जगह वर्ल्ड में ट्रैवल करते थे. दे ट्रैवल्ड इन शिप्स, हॉर्सेस, कैमल्स या कभी कभी फूट पे, मतलब चलते चलते. सो दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू एटलीस्ट write 3 different ways in which people in India do the following things. Different ways in which people pray, कोई through singing a hymn or by doing puja of the idol. तो आपको ये examples देने हैं. Different ways in which people get married by signing in a court, by getting married in temple, by getting married in church. Different ways in which people dress. तो गुजरात में we wear, what do we wear? You have to write. So सबके states के आप देखो क्या अलग अलग पहनते हैं. The way in which people greet each other, the way in which people cook rice. So this is your homework. You have to fill the boxes. This will show you diversity, how India is a diverse country. And after you do this, we will continue from this part in the next class. Thank you.